Tara Energy presents Community Roundup with Mehnaz. I am Mehnaz, bringing you the show that highlights leaders and influencers supporting our communities. Assalamu alaikum. Welcome to Community Roundup with Mehnaz. Thank you GeoTV for providing us this platform, and thank you Tara Energy for sponsoring our show today. अब मैं तारफ़ कराती हूँ हमारे आज के गेस्ट का. Our guest today is from Chakwal, Pakistan, where he was born and raised. He completed his religious studies and Bachelor of Sciences from Pakistan. He has been serving the communities, various communities for the past 23 years in the United States, and has traveled to Canada, UK, Japan for religious missions. He's currently serving as a resident alim at Dar Abbas, Houston, has been for the past 4 years. He strongly believes in community service and encouraging and engaging youth on different aspects, and also provides religious counseling services to the community members, which is his pride and joy. Believes in showing all our communities a softer image of Islam. With that, let me please welcome Allama Wasim Abbas. Thank you so much for being here. Alhamdulillah. Thank you very much for having me, Mehnaz. I really appreciate that. And I'm thankful to you in this platform and Najim Sheikh Saab for having me today here. I really appreciate it. Thank you so much for making the time. अच्छा आप हमें मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई. If you can shed some highlights. I know it started in Chakwal, Punjab, Pakistan, मगर थोड़ा सा आप बताएं. A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. It goes back back in 2000. When I first moved here to United States from Islamabad. बहुत अरसा हो गया है. So I was living, like you said, I was born and raised in Chakwal, which is like almost 2 hours from Islamabad, Pakistan. So I completed my basic education there. Then I moved to the city Chakwal, where I completed my graduation, bachelor in botany, zoology and chemistry. And along with that, I was also receiving my religious education. There's an institution called Madrasa Khatamul Anbiya in Chakwal, and there was one in Tudial, Madrasa Mazharul Iman. So I basically completed the basic education from there, and then in 2000 I moved to United States. So first I came to New Jersey, और फिर New Jersey से ये सफ़र शुरू हुआ, and since then I'm here like for the last 23 years. And as you said, I have served in New York, New Jersey, Connecticut, Boston, and all different states within the United States. और फिर उसके बाद I had an opportunity to travel abroad. I went to, like you said, Japan, Canada for all the religious mission. So बस ये ज़िंदगी का एक passion है कि काम करना है humanity के लिए. I just when I think about the religion, I think it beyond just Islam. कि इस सिर्फ मुसलमानों के अंदर जो है. I think कि Islam is a religion. Islam is the only religion. Inna Deena Indallahi Islam. Quran says that the religion to Allah subhanahu wa ta'ala is Islam. तो हमने ये जो boundaries बना ली हैं, इससे बाहर होके हमने सोचना है. And that's what my it was a thought that made me to come into this field कि काम करना है, और काम करना है humanity पे काम करना है. And the message of Islam, the peaceful message of Islam, we have to deliver it to all nations, not just within Muslims or within a particular sect. तो ये एक सोच थी. पाकिस्तान में थे तो भी ये सोच थी, और फिर यहाँ जब आए तो तब से ये काम जो है वो शुरू किया खिदमत दीन का मुख्तलिफ इदारों के साथ. I was associated different mosques in New Jersey, New York, and I was also serving in Boston, and then I also served some centers in Dallas. So since then फिर आगे तो for the last 4 years I'm here in Houston. Dar Abbas Center North में है, and I'm just providing my humble services. Being in this field of being an Islamic scholar, आपको वो support यहाँ पे भी मिलती है जो I'm sure Pakistan and India and other countries जहाँ पे the support of continuously learning and educating yourself on how the environment around us is changing. जो मसले मसाइल हो रहे हैं उनके साथ is that do you have the right support system even in the United States amongst the scholars कि आप एक दूसरे के साथ share करते हैं, knowledge sharing? And
that's like very important question, and you know that, but a lot of people might be surprised कि यहाँ पर जो environment है, जो वेस्टर्न दुनिया में है, और particularly in United States जो है, you have lots of freedom. आपको यहाँ पर जो opportunities मिलते हैं to practice your religion, you know, to like basically express your feelings, वो आपको बहुत से मुसलमान ममालिक में भी नहीं मिलती. आप आए थे in 2000? Yes, that's right. तो उस वक्त से लेके अब तक like आपने देखा होगा there's been so many different things that have happened around us. तो how did you help you know support the softer image of Islam? You know, इसमें आपने how did you portray that in your own terms or in your capacity? आपने इस चीज़ को कैसे आप लेके आए? मुझे पता है कि आप interfaith जो religions में भी आप हिस्सा लेते हैं and you know you support the community at large, but how do we change that perception जो यहाँ पे especially after 9/11 जो हुआ है यहाँ पे in the United States specifically, even in Canada it was impacted or around the world, but how do we change that perception to show the softer side of Islam? That's again very important question. Let me tell you something. हमारे छठे इमाम जो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनकी एक saying है, and I must share that with you. Someone came to them and he asked that, Maula, I'm going to travel somewhere, so I want to preach and convey your message. How should I do that? तो इमाम ने कहा, just be quiet. उसने कहा, मौला, how come, like, you know, that is possible कि I'm going to convey your message and how can I be quiet? I have to be quiet. Ji. So if I don't say anything, how I'm going to convey that message? Imam said, convey that from your personality, from your attitude, from your actions, from the way that you live, from the way that you interact with people. तो इस मुल्क में मैंने जो आकर देखा, और वो ये था कि बहुत सी चीज़ें आप जो इस्लाम का सॉफ्ट इमेज आप बात कर रही हैं, instead of like, you know, getting a mic and having a mic and announcing and letting people know that, you know, that's what Islam is, I think the better way to preach your religion is to show through your actions, from your personality, from the way you talk, the way you interact with people, the way you communicate with people, and you to your neighbors. Like आपने देखा होगा यहाँ जिस माशरे में हम रहते हैं और जिस माहौल में हम रहते हैं, हमारे नेबर्स में हर मजहब का आदमी है. क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, सिख हैं, दीगर रिलीजन और दीगर मकातिब से और दीगर स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं. सो व्हेन अ मुस्लिम इज अमंग्स्ट ऑल दोज पीपल इन अ नेबरहुड, योर कैरेक्टर, योर एक्शंस एंड द वे यू लिव एंड द वे यू इंटरेक्ट विद पीपल, विद योर नेबर्स, द वे यू हेल्प देम, द वे, तो वो दैट affects more, instead of you, like, you know, inviting them towards Islam, your actions invite them towards your religion. They speak louder. बिल्कुल exactly. आपने बिल्कुल सही बात की, and I think they're also, and that's probably, you're right, that is the best way. चाहे आप वो community, it doesn't have to be कि आप अपनी ही community में volunteer करें. It could be across the board. जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे भी आपका फर्ज होता है to engage and support people around you. तो I think when they see people from our communities, from Islamic communities, doing their part at a large, उससे I think you're right. That's right. Definitely speak. That's, and if you please allow me, let me just add this to that कि मैं जो काम मैंने शुरू में किया और जो अब तक कर रहे हैं, वो सिर्फ not within just the Muslim community या not just within Shia और Sunni community. मैंने तो Jews के साथ न्यूयॉर्क में हमारी गैदरिंग्स होती थी और क्रिश्चियंस के साथ इंटरफेथ डायलॉग्स होते थे. And like, you know, I believe in, and that's what I preach through my speeches, कि tolerance पैदा करें. You know, you have your own point of view, you have, like, you know, the other person has their own point of view, so you have your own, but have tolerance to listen to others, and then like वो उनकी एक राय है, उनकी एक ओपिनियन है. सो अगर हम एक दूसरे को सुनना, बर्दाश्त करना और एक दूसरे को टॉलरेट करना सीख लें, यकीन करें ये मुआशरे में, जो सोसाइटी में जो डिविजन्स हैं, ये खत्म हो जाएंगी. और ये जो हमने हर एक ने अपना छोटा छोटा एक वो बना रखा है और उसके अंदर हम, उस सर्कल के अंदर हमें, वी आर नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट सर्कल, उससे फिर दूरियां पैदा होती हैं, उससे फिर लाइक डिस्टेंस जो है वो बढ़ता है. और बदकिस्मती से बाज जगह पर तो ऐसा है कि मस्जिदों के नाम रख दिए गए, इसमें ये फलां किया, ये फलां किया. तो हमने जब चीज़ों को ओपन करना शुरू करना है, हमने जब ये तमाम डिविजन्स को ख़त्म करके मोहब्बत का और प्यार का दर्स देना है, तो मैं समझता हूँ कि फिर लोग और ज़्यादा आपके दीन की तरफ. ये आपने ये बहुत अच्छा मैसेज दिया. आई वांट टू डिस्कस मोर ऑन दिस, तो हम अभी जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं और देखते हैं दूसरे शहरों में क्या क्या हो रहा है. फिर आके आपसे और बात करेंगे कि हाउ वी कैन फोकस ऑन आवर सिमिलरिटीज रादर देन आवर डिफरेंसेस. इस साल पूरी दुनिया में रमजान का आगाज एक ही दिन हुआ. रमजान शुरू होते ही मसाजिद, रेस्टोरेंट, घरों पर इफ्तार की दावतें शुरू हो जाती.
ह्यूस्टन में एक सिख जोड़ा जसपीर सिंह बावा और बलविंदर कौर बावा मौजूद हैं, जो कि मुसलमान बहन भाइयों के लिए अफ्तारी करवाते हैं। इस साल भी इन्होंने लसबेला रेस्टोरेंट में अफ्तार का बंदोबस्त किया। अफ्तार से पहले दोनों मियाँ बीवी दरवाजे पर खड़े मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए नजर आए। अजान के बाद अफ्तारी के ऊपर मियाँ बीवी एक एक टेबल पर जाकर के रोजादारों से पूछते रहे उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। इस साल भी हाजरीन ने अफ्तारी को बहुत सराहा। This is wonderful. Thank you so much for the wonderful iftar and the wonderful food. It's been a very beautiful evening and really special for me because I've never had Pakistani food before. मैं हर साल इधर बाबा अफ्तारी करवाते हैं। इधर हर साल अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत डाले और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज होता है इनके। आज की इफ्तारी प्यार, मोहब्बत और एसार की एक जिंदा मिसाल है। बाबा जी हर साल मुसलमान भाइयों के लिए इफ्तारी करते हैं। अल्लाह ताला इनके भी रिज़्क़ में बरकत डाले और इसी तरह प्यार मोहब्बत से ह्यूस्टन की कम्युनिटी बल्कि पूरी दुनिया परवान चढ़ती रहे। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सबको, तमाम नाज़रीन और सामीन को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और बाबा जी जो बाबा ज्वेलर के नाम से माशाल्लाह और सदियों से सालों साल से करते चले आ रहे हैं, इफ्तार का एक एहतमाम और तमाम पूरी कम्युनिटी के लिए जहाँ जहाँ लोगों को पता चलता है वो आते हैं और इनकी मोहब्बत और प्यार में। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी आपकी जो मेज़बानी है उसके हम मजे लूट रहे हैं। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. वेरी काइंड ऑफ यू। आपकी मोहब्बत है, Thank you. आपकी मोहब्बत है। इसी तरह लॉन्ग लिव बाबा जी, बड़ी लंबी उम्र Thank you. होनी Thank चाहिए। you. Thank you. Thank you. Thank you. लॉन्ग लिव। लॉन्ग लिव। बड़ा ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। इधर हम मौजूद हैं लसबेला रेस्टोरेंट पे। बाबा जी ने बहुत ही जबरदस्त अफ्तार करवाया है। एक शानदार अफ्तार के लिए बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और रमजान मुबारक आप सबको। आज यहाँ पे हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मुस्लिम कम्युनिटी ह्यूस्टन की। तो बाबा जी और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी फैमिली का। और हम यही दुआ करूंगी इंशाल्लाह के ऐसे ही हमारी सब कम्युनिटीज के बीच में इसी तरह से प्यार हमेशा बना रहे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੂਲਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਨੀ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਰਮਜ਼ਾਨ। Assalamu alaikum everyone, I am Kanis Ora Siddiqui and I wanted to say thank you to Baba Ji from Baba Jewelers for hosting this amazing Ramadan here at Las Velas Restaurant in Houston, Texas. Ramadan Mubarak everyone. बाबा ज्वेलर्स की जानिब से अफ्तार डिनर किया गया है और बहुत अच्छा अफ्तार डिनर था। सब लोगों ने बड़ा इंजॉय किया और अल्लाह ताला बाबा जी के रिज़्क़ में इजाफा करे और बाकी लोगों को भी रिज़्क़ में इजाफा करे। इसी तरह खुशियाँ हम बांटते रहें। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਬਾ ਜੁਲਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਬਾਵਾ ਜੁਐਲਰਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਫਤਾਰੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਫਤਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच बाबा जी, आपने हमें ये मौका दिया तमाम कम्युनिटी के साथ जो है वो सेलिब्रेट कर सकें, उनके साथ बैठ के इफ्तार कर सकें। यू नो, थैंक यू सो मच। बाबा जी और मिसेस बाबा जी की मुस्लिम कम्युनिटी से प्यार, मोहब्बत, हारमोनी की जिंदा मिसाल है और उम्मीद की जाती है कि पूरी दुनिया के लोग इस तरह इसको फॉलो करेंगे और एक दूसरे से मिलजुल कर जिंदगी गुजारेंगे। शेख नजम कम्युनिटी राउंडअप, ह्यूस्टन, टेक्सास, ओनली ऑन जियो TV।
मैं हूं आपका अपना शेफ गुलजार। मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं लसबेला रेस्टोरेंट, टेक्सास, ह्यूस्टन में। मैं हूं शेफ नदीम और बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूं ह्यूस्टन के साथ। इट्स वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन ह्यूस्टन। मैं आ रहा है आपके पास। जायके सोनी धरती के, वतन से दूर मगर दिल के पास। रोशनी तो मैं भी हूँ, रोशनी तो तुम भी हो। We understand the importance of having the right energy partner. मैं हूँ तारा। We offer competitive pricing for both small and large businesses. मैं हूँ तारा। Plus, when you sign on with Tara Energy, you also benefit from the corporate power of the Just Energy group of companies. मैं भी तारा हूँ, आप भी बने। We are proud to be one of the largest providers of electricity in Texas to hotels, convenience stores, and fast food restaurants since 2002. Call now 1-855-855-8272. Shikani Group of companies formed in Houston, Texas, specializing in real estate, land development, construction and fast food, convenience stores and vape shop retail. With an operation of over 1,300 employees and 200 owned and operated retail stores, Shikani Group is set to build on of the most successful vape store chain by the name of Vape City in Texas, with currently over 150 plus locations. Welcome back to Community Roundup with Mehnaz. Thank you. Welcome back, Maulana Sahab. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you. हम बात कर रहे थे intolerance की और हम बात कर रहे थे कि how we can engage interfaith religions और अपने इस्लाम का हम कैसे softer image show कर सकते हैं. जी. उसके बारे में आपने बहुत अच्छे points share किए कि actions speak louder. तो और आप मुझे बताएं यहाँ पे हम क्या हो रहा है यहाँ की communities में where our focus is more based on our similarities rather than our differences. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अगर ह्यूस्टन की अगर आप बात करते हैं तो काम तो बहुत हो रहा है माशाल्लाह। हमारी जो मसाजिद हैं, जो इमाम बारगाह हैं, शिया सुन्नी की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से इसमें कोई शक नहीं है कि मोहब्बत का पैगाम जा रहा है और उससे ये होता है कि जो दीगर कम्युनिटीज़ जो हैं वो लोग भी फिर इंटरेक्ट करते हैं, वो आते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। माह रमज़ान की इफ्तारी करवाने वाले बाज़ ऐसे हमारे स्पॉन्सर्स हैं कि जो अहले सुन्नत से हैं और फिर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो आउट ऑफ द रिलीजन है, जो मुसलमानों को इफ्तारियाँ करवा रहे हैं। शिया की मस्जिद में अहले सुन्नत की इफ्तारी आ रही है, अहले सुन्नत की मस्जिद में शिया की तरफ से इफ्तारी आ रही है। और फिर यह है कि गैर मुस्लिम ऐसे हैं कि जो स्पॉन्सर करते हैं कि तो एक मोहब्बत की फ़िज़ा है, ठीक है, एक टॉलरेंस है विच इज़ गुड। और उसमें देखें ना, आपका अकीदा, आपका नज़रिया, आपका फेथ, द वे यू प्रैक्टिस योर रिलीजन इज़ योर ओन चॉइस। लेकिन तो जिस मुआशरे में, जिस कम्युनिटी में हम रह रहे होते हैं, कुछ तो हमारे मजहब के एक दूसरे पर राइट है, मुसलमान भाई का मुसलमान भाई पे, मुसलमान बहन का भाई पे, ये तो हमारे एक तो वो राइट्स हैं। कुछ हमारे राइट्स वो हैं जो हमारे नेबर के राइट्स हैं, जो हमारा उनका मजहब इस्लाम नहीं है, वो किसी और मजहब से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो इंसान तो हैं। तो वी हैव लाइक राइट्स ऑफ देम ओवर अस। तो उसमें फिर ये कि अगर आप मोहब्बत का एक पैगाम आम करें और लोगों से इंटरेक्ट करें तो वो फिर आपसे एक तो थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं, ठीक है, और फिर वो आपसे करीब आ जाते हैं। एंड व्हेन दे कम क्लोज टू यू, दे स्टडी योर रिलीजन, दे टॉक टू यू, एंड व्हेन दे फाइंड आउट दैट इस्लाम इज नॉट व्हाट द मीडिया इज पोर्ट्रेइंग, और इस्लाम इज नॉट लाइक व्हाट दे हैव हर्ड फ्रॉम अदर पीपल, इट इज अ रिलीजन ऑफ लव, harmony, peace, and care. So they come even, and many of people I have seen and I have witnessed here, in United States, that many of people, because of the attitude of their neighbors, their friends, they converted into Islam. Right. और या फिर they want to seek more knowledge. True. उनका बढ़ता है. Absolutely. And you're right. I think our actions is the best display of no doubt of your religion or your faith. No doubt. अब मुझे आप ये बताएं कि हमारे बच्चे जो हैं उनका क्या future है for kids being raised here that are growing up in the United States or in America in general, North America. What do you see for them? उनके लिए आपकी क्या vision है, या हम क्या कर सकते हैं proactively rather than being reactive? Because we are obviously, as time progresses, we lose a little bit of culture, we lose a little bit of religion. How do we preserve our religion?
That's $1 million question. यकीन करें इतनी कॉल्स आती हैं लोगों की और लोग इतना पूछते हैं because they are concerned about their children. They are concerned about the youth, you know, they are concerned with the coming time and the future which is approaching us very quickly. And unfortunately बाज़ औक़ात ये जब हम देखते हैं कि हम दुनिया के हवाले से तो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं, हम उन्हें डॉक्टर बना रहे हैं, हम उन्हें इंजीनियर बना रहे हैं, हम उन्हें अच्छा जो है एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, लेकिन क्या हम उन्हें एक अच्छा इंसान भी एट द सेम टाइम बना रहे हैं? क्या हम उन्हें अपना कल्चर सिखा रहे हैं, जिस कल्चर द कल्चर दैट वी केम फ्रॉम, द कल्चर दैट वी रियली बिलोंग टू, हमारी जो हेरिटेज है, हमारी जो सकाफत है, क्या हम उन्हें वो भी दे रहे हैं? और फिर उसके बाद क्या हम उन्हें अपना रिलीजन दे रहे हैं? क्या हम उन्हें उस रिलीजन पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं? क्या हम ये यू नो इज इट पॉसिबल दैट वी आर होपिंग दैट यू नो द टाइम विच इज कमिंग these people are going to be strong enough, our children are going to be strong enough to face the challenges, क्योंकि जो वक्त आ रहा है अभी भी बहुत challenges है, आप देखते हैं बहुत से इस्लामी मुमालिक में वो challenges नहीं है जो यहाँ पे हैं, और इस मुआशरे में रहकर उन challenges को face करना and then to overcome those challenges, you know, you get higher reward. एक ऐसे माशरे में कि जहाँ पर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ इस्लामिक है, वहाँ पर रहना आसान है. एक ऐसे माशरे में कि जहाँ पर कदम कदम पर आपको जो है वो चैलेंजेस हैं, उस माशरे में अपनी हिफाजत करना और फिर अपने बच्चों की हिफाजत करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. अब मुझे आप ये बताएं कि यू नो आई नो दैट यू डू अ लॉट ऑफ पर्सनल वर्क इन द कम्युनिटी, जो आप अपना खुद से करते हैं. यू डू काउंसलिंग सर्विसेज, यू डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट इनिशिएटिव्स विद द यूथ माशाल्लाह. तो अगर you know if somebody wants to contact you, how do they do that? कैसे कर सकते हैं? श्योर, ये आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट उठाया है. यकीनन इस मुआशरे में जहाँ पर बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि दे डिस्ट्रैक्ट यू एंड द स्ट्रेस लेवल गोज अप. ठीक है ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, फैमिलीज़ में है, पेरेंट्स में है, बच्चों में है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं. तो उसमें मैं साथ साथ जो है आई एम ट्राई माई बेस्ट टू प्ले माई रोल इन फैमिली काउंसलिंग. बच्चों में कर रहे हैं, यूथ को जो है वो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं यूथ के लिए है, फैमिली काउंसलिंग है, बहुत सी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ. फिर बाज़ फैमिलीज़ के इशूज़ हैं कि बच्चे माँ बाप की नहीं मान रहे, फिर फैमिलीज़ की डोमेस्टिक और बहुत से इशूज़ हैं. तो आई ट्राई टू गेट इन्वॉल्व, और उसमें फिर ये कि बिफोर the case goes to a legal level, उससे पहले हम उसको कोशिश करते हैं कि I step in and then we would try to reconcile that, और उसको फिर चीज़ों को बेहतर करते हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं. तो my services are always there, you know, they can search me on social media, you know, email कर सकते हैं, WhatsApp पे कॉल कर सकते हैं, रेगुलर नंबर पे कॉल कर सकते हैं, they can email me, Instagram है. तो ईमेल तो मेरा पूरा नाम है मौलाना वसीम अब्बास @gmail.com, मौलाना वसीम अब्बास @gmail.com. इसी पे इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक वगैरह पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. और सेल नंबर मेरा जो है वो 848-469-0420 है, 848-469-0420. मौलाना साहब, आप एक मैसेज अगर हम अब दे सकें कम्युनिटी के लिए, आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट. जस्ट अ मैसेज फ्रॉम यू. बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं हाजिर हुआ और ये गुफ्तगू जो है इस करने का मौका मिला. जहाँ तक मैसेज की ताल्लुक है, मैं दरख्वास्त ही कर सकता हूँ. माशाल्लाह सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, देखते हैं. जो मैं अक्सर एक बात करता हूँ, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट इज़ लव. बदकिस्मती से आज हमारे दरमियान नफ़रतें बढ़ गई हैं. हर एक दूसरे से नफरत करता है. बाज़ औक़ात ज़बान की बुनियाद पर नफरत की जाती है, बाज़ औक़ात रंग की बुनियाद पर नफरत की जाती है, बाज़ औक़ात द टेरिटरी दैट यू केम फ्राम उसकी बुनियाद पर नफरत की जाती है. तो मैं जो गुजारिश करता हूँ, और आज आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी मैं ये आपके देखने और सुनने वालों को ये गुजारिश करूँगा, मोहब्बत का पैगाम आम करें. मोहब्बत से आप दिल जीत सकते हैं, नफरत से कुछ हासिल नहीं होता. अपने घरों में मोहब्बत का माहौल पैदा करें. बाज़ औक़ात कुछ वालिदैन समझते हैं कि डांट डपट के साथ और सख्ती के साथ बच्चों को वो रास्ते पर रखेंगे. मैं कहता हूँ नहीं, मोहब्बत से जो काम प्यार से कर सकते हैं, जो काम मोहब्बत से हो सकता है, वो काम सख्ती से नहीं होता. घर का माहौल हो तो उसमें मोहब्बत रखें. बाहर काम पे जाएं, जॉब में हो, स्टोर में ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आप जा रहे हैं, तो मोहब्बत को आम करें. लोगों की जिंदगियों में
आसानियां पैदा करें। बहुत मुश्किलात हैं, लोग यकीन करें, लोग तंग हैं, जिंदगी में इकोनॉमिक क्राइसिस है और परेशानियां हैं। आप जब मोहब्बतें आम करेंगे, किसी दुखी दिल को आप खुश करेंगे, किसी से प्यार से मीठे से आप दो बोल देंगे, तो यकीन करें उनकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आसानियाँ पैदा करें, मोहब्बत आम करें, नफ़रतों से कुछ नहीं मिलने वाला। ना हम नफ़रत से अपना कोई फ़ायदा कर सकते हैं और न नफ़रतों से कुछ और हम हासिल कर सकते हैं। तो बेहतरीन मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि आइए मोहब्बतें आम करें और आसानियाँ तकसीम करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, थैंक यू सो मच। And उसके साथ I'll wrap up our show today. Thank you Tara Energy for providing us this platform. And once again, हम मिलेंगे इंशाल्लाह next week दोबारा। रमज़ान मुबारक सबको। अल्लाह हाफ़िज़।